हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बट ये दोनों टॉपिक से पहले हम लोग ये जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज जस्ट अ कनेक्शन, इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन so that we get this signal from the different stimuli that we response, or we can say the response to the stimuli. सो ये नर्वस सिस्टम क्या है? जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, इसको हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे समझा सकते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग इन द सेंस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट देन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो करंट वायर में है, वायर इज नॉट ग्लोइंग द लाइट बट वायर इज ट्रांसफरिंग द करंट। लाइक दैट ओनली अगर हम लोग के बॉडी में in the body the nervous system, this nervous system is just transferring the signal from the stimuli to our brain and or spinal cord. So nervous system सिर्फ ट्रांसफर करने में मदद करता है। that is क्या ट्रांसफर करने में मदद करता है? only the signal that is that the response that it get from the stimuli. So nervous system is just transferring the signal. तो nervous system ये पूरे एक सिस्टम को बोलेंगे, द इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन। बट इसका एक पार्ट को क्या बोलेंगे? तो न्यूरॉन बोलेंगे। वन पार्ट, अ सिंगल पार्ट इज कॉल्ड न्यूरॉन। और उसी न्यूरॉन के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और इस नर्वस सिस्टम का जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन, दैट इज इसका क्लासिफिकेशन क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर देन विल गो अबाउट द स्ट्रक्चर। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। So now we will discuss about the division of nervous system कि nervous system कितना parts में divided है। So you can see here nervous system is divided into three parts: CNS, peripheral and autonomic. Here CNS means central nervous system. Central nervous system, the brain part, that is central nervous system. That is, if this is a, which I am calling as central nervous system, you can just see here, if this is a brain and this is a spinal cord, it means where vertebral column back side in the dorsal side, that is where vertebral column is present. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, थिंक दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में सेंटर, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। तो दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर if this is a vertebral column then these are spinal cords which are going inside through it. So this is central nervous system. Why it is called central nervous system? Because it is present in the center of the body. Okay, this is present in the center of the body, so it is present central nervous system. Now it has two parts, brain and spinal cord. Next is peripheral. Okay, so peripheral means the body part which is present far apart from the center. So this is called periphery. Periphery has two parts, cranial nerves and spinal nerves. Spinal nerves and cranial nerves means spinal nerves which are present, the nerves which are present far apart from the spinal cord. If this is a spinal cord, I am telling this is a spinal cord, then the nerves coming out from it, these are called spinal nerves. This is the spinal cord which I am telling here, and these are spinal nerves which I have told here. So cranial nerves, the nerves coming out from the cranium, that is cranium, brain box. Cranium is called brain box. So cranium, so that is called cranial nerves. So periphery means the nerves which are present far apart from the center, मतलब सेंटर से दूर होगा, उसको बोलते हैं पेरिफेरी। ना ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये नया वर्ड है तो इसको समझना जरूरी है, इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक मोस्ट कॉमन वर्ड विच आर यूज्ड इन 11th क्लास ऑल्सो और इन वेरियस एग्जामिनेशन ऑल्सो इट इज आस्क्ड कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या है। सो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या है? जस्ट सी हियर, sympathetic means the nerves which are present close to the CNS, that is central nervous system. वो nerves जो कि central nervous system के सामने है उसको बोलेंगे sympathetic nervous system. बट यहाँ पे एक और चीज़ समझना जरूरी है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में एक होता है गैंग्लिया, दिस इज कॉल्ड गैंग्लिया। और यहाँ पे अगर ये जो पहले है इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया।
और बाद में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लिया। एंड व्हाट इज गैंग्लिया? इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ओके, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो गैंग्लिया किसको बोलते हैं? गैंग्लिया इट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड हियर गैंग्लिया इज प्रेजेंट। एंड बिफोर दैट जो नर्व्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अगर सिंपैथेटिक है तो प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक में अगर इधर साइड है तो इसको बोलते हैं पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लिया। उसी तरीका से पैरासिम्पैथेटिक में इसी तरीका से अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज दिस अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ दी नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में भी प्रेजेंट है और पैरासिम्पैथेटिक में भी प्रेजेंट है। सो सिंपैथेटिक में अगर प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया और पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक में प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा प्री पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया और पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, एंड गैंग्लिया इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। सो कमिंग टू द टॉपिक, सो यहाँ पे सिंपैथेटिक मीन्स द नर्व्स विच आर प्रेजेंट क्लोज टू द गैंग्लिया। तो क्लोज टू द गैंग्लिया मीन्स इफ दिस इज अ ब्रेन, okay, and this is a ganglia present. So this is pre-sympathetic because the sympathetic I have told it is present close to the CNS, that is central nervous system. तो brain से सामने है कौन? This pre-sympathetic. तो pre-sympathetic ganglia जो है वो smaller रहेगा, small होगा, ठीक है। और post-sympathetic ganglia that will be bigger. Post-sympathetic ganglia it means the transfer of signal from brain to the tissue is from this nervous system in which in between the ganglia is present, but as I am telling in sympathetic it is present close to the CNS, that is brain, so it is small, it is close to the brain, so it will be, that is pre-sympathetic ganglia would be small, sorry, pre-sympathetic nervous system would be small and post-sympathetic would be larger. Next, one more thing you can remember, in pre-sympathetic the transfer of signal is cholinergic. Okay, it is right, cholinergic, and here it is adrenergic. What is the meaning of it? Adrenergic and cholinergic. When transfer of signal is by acetylcholine chemical, it is the name of a chemical, acetylcholine, then it is called cholinergic. And when the transfer of signal is by adrenaline and non-adrenaline, then it is called adrenergic. So just here remember, in sympathetic, again I am explaining, in sympathetic this system would be close to the ganglia, the nervous system, that is it would be close to the ganglia. So it will be close to the ganglia, it means the ganglia would be present close to the brain, and if it would be present close to the brain, then pre-sympathetic nervous system would be smaller and post-sympathetic nervous system would be bigger. यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रांसफर होगा वो किस केमिकल से होगा? तो वो होगा कोलिनर्जिक, दैट इज एसिटाइलकोलाइन से होगा। I will just write cholinergic means transfer of signal is through acetylcholine chemical. तो acetylcholine. Adrenergic means adrenaline and non-adrenaline. So these are the chemicals by which transfer of signal take place between the brain and the tissue. This is about the sympathetic. Now I will tell about the parasympathetic. So just see. In parasympathetic also these arrangement would be present. So how the arrangement would be present, that I will see. So just see here. This is parasympathetic. Now I am telling about parasympathetic. In parasympathetic, because it is present not close to the CNS, but it would be present close to the tissue. So now it would be present close to the tissue के करीब प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, यहाँ पे हम बताएं कि ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है पैरासिम्पैथेटिक में भी. तो कैसा अरेंजमेंट रहेगा वो देखिए. अगर यहाँ पे ब्रेन है और यहाँ पे टिश्यू है फॉर द फ्लो ऑफ सिग्नल, सो ब्रेन से अगर टिश्यू में फ्लो करना है तो यहाँ पे इट वुड बी प्रेजेंट क्लोज टू द टिश्यू. It means the ganglia would be present close to the tissue. Here the post
parasympathetic, because I am telling about parasympathetic, so the naming would be about parasympathetic. The post parasympathetic would be present smaller, it would be smaller, and pre parasympathetic nervous system would be present larger. So pre parasympathetic would be present larger, और यहाँ पे इसका भी नाम होगा पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, अब यहाँ पे किस केमिकल से ट्रांसफर होगा सिग्नल, तो यहाँ पे होगा बोथ वुड बी कोलिनर्जिक and here also cholinergic, and cholinergic means the transfer of signal would be by acetylcholine. So both would be acetylcholine. This is the name of the chemical, acetylcholine. So here also just see here, parasympathetic means the nervous system, that is the ganglia would be present close to the tissue. Close to the tissue means when, if this is a brain and this is a tissue, then this ganglia, this is a ganglia. And what is ganglia? Ganglia means, ganglia का मतलब a group of neuron, ठीक है, a group of neuron, वहाँ उसको ganglia बोलते हैं. Just a simple, in a simple way, a group of neuron. So the ganglia would be present close to the tissue. So here you can see post parasympathetic ganglia would be smaller and pre parasympathetic ganglia would be larger. The transfer of signal, that is ट्रांसफर सिग्नल कैसे ट्रांसफर होगा, किस केमिकल से होगा, तो एसिटाइलकोलाइन, इसीलिए उसको एसिटाइलकोलाइन से होता है, इसलिए उसको कोलिनर्जिक बोलते हैं. बट दोनों में कोलिनर्जिक ही होगा, दोनों में एसिटाइलकोलाइन से ही होगा. सो नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है. सो नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है. ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट. नेक्स्ट इज निजल ग्रैन्यूल, दैट इज सम सेलुलर ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट इज निजल ग्रैन्यूल. दिस इज पर्टिकुलरली वन सेल. जैसे कि हम लोग एक सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीका से न्यूरॉन एक सेल ही है, ये सेल है, बट इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव सम स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव टू सी. So nasal granules, these are called nasal, some cellular organelles are present here, these are called nasal granules. Next is nucleus, this is called cell body, this is called cell body. Next is, this line is called axon, this space is called node of Ranvier, this cell is called Scavens cell. Next is myelin sheet, this sheet is called myelin sheet. Next is terminal axon and last is synaptic node. अब सबके बारे में दैट इज फंक्शन देख लेते हैं. डेंड्राइट का काम क्या है, यहाँ डेंड्राइट का काम है टू रिसीव सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल रिसीव करता है एंड देन इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू दी सिनेप्टिक नर्व. तो डेंड्राइट का जस्ट टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम दी वन न्यूरॉन टू दी सेल बॉडी. दिस न्यूरॉन सेल बॉडी में ट्रांसफर करने का काम है, दैट इज डेंड्राइट का काम है. Nasal granule is just for transferring signal, it has also some function. Nucleus, cell body, you know. Axon, it is a axon, this region, it is just transferring the signal from the cell body to the synaptic nerve. Node of Ranvier, the space between two myelin sheet is called node of Ranvier. This is Scavens cell. Scavens cell का इसका क्या फंक्शन है, it just forms a myelin sheet. अगर Scavens cell है then it forms a myelin sheet form करता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज टर्मिनल एक्सॉन, दिस इज टर्मिनल मीन्स एंड एक्सॉन एंड सिनेप्टिक नर्व. हेयर यू हैव टू स्टडी टू थिंग्स. द न्यूरॉन हैज, on the basis of number of neuron present in our body, neuron is classified into 3 types. 3 types का है न्यूरॉन, ठीक है, 3 टाइप्स का है न्यूरॉन. और किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो सबसे पहला होता है यूनिपोलर. नेक्स्ट इज बाइपोलर एंड थर्ड इज मल्टीपोलर. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल 3. यूनिपोलर का मतलब जहां पे सिर्फ ओनली एंड ओनली दिस सेल बॉडी इज प्रेजेंट, दैट्स इट. सिर्फ ये सेल बॉडी अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम सिर्फ यूनिपोलर बोलेंगे. एंड वेयर इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. Next is bipolar. Bipolar में this dendrite is also present and this axon terminal is also present. Then it is called bipolar. And where it is present? It is present in the retina cell of the eye, human eye. Next is multipolar. Multipolar means it has one
axon, that is this terminal, synaptic node and terminal, this terminal axon is present, but the dendrite is present in two to more dendrite is present here in multipolar. It means it has one terminal, that is axon terminal, but dendrite is present two or more dendrite can be present, then it is called multipolar, and it is present in cerebral cortex of the human brain. So this is on the basis of types of neuron, on the basis of number of neuron present in our body. Now next we will discuss about the myelinated and non-myelinated, or we can say unmyelinated neuron. Myelinated and what is the function of two types of neuron are present, where the myelin sheet is present and where the myelin sheet is not present. The neuron in which myelin sheet, जहाँ पे ये myelin sheet present नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन. जहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट है वहाँ पे बोलते हैं उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो कि हम अभी देखने वाले हैं. सो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अब इसका फंक्शन क्या है? माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्कावेन सेल माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है. अभी इसका काम क्या है? काम ये है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल इज 20 टाइम्स मोर. बहुत स्पीड में द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल टेक प्लेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन. क्यों? क्योंकि जो सिग्नल होता है, नेक्स्ट वीडियो में विल सी द कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, की न्यूरॉन का कंडक्शन कैसे होता है. सो इन द कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अदर नोड ऑफ रैनवियर. सो इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम हेयर, यहाँ से फ्लो नहीं होता है, ये डायरेक्टली फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अदर नोड ऑफ रैनवियर तक ट्रांसफर होता है डायरेक्टली. सो द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन. सो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रांसफर ऑफ सिग्नल टेक प्लेस, सिग्नल ट्रांसफर होता है बहुत स्पीड में. सो इसका मेन रोल है टू, सो इट स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल. नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है? तो हाँ, एक और चीज़ था, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन आपका क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होता है. एंड स्पाइनल नर्व्स. नाउ वी विल सी अनमाइलिनेटेड और वी कैन से नॉन माइलिनेटेड. तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब जहां पे स्कावेन सेल तो प्रेजेंट है, स्कावेन सेल प्रेजेंट है, बट ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है. माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में. द न्यूरॉन इन विच दिस माइलिन शीट इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द माइलिनेटेड न्यूरॉन. इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, इसके कंपैरिजन में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रांसफर ऑफ सिग्नल टेक प्लेस स्लोली. और यहाँ पे कहाँ ये दिस अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वन इज ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. So this is present in autonomic. And what is autonomic? The autonomic मतलब the cell or the tissue which are not controlled by ourselves. It means the heart cell, the inner lining of the stomach and the inner lining of the intestine, ये सब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है. तो उस सारे न्यूरल से उस जगह पे जहाँ जो भी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. द न्यूरॉन which are present in that type of tissue which are not controlled by our will, that is the heart cell, in the heart or the inner lining of the stomach में या फिर intestine का inner lining में जो भी न्यूरॉन प्रेजेंट है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. और वही प्रेजेंट होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट होता है. और एक होता है सोमैटिक, द टिश्यू विच आर प्रेजेंट बाय आवरसेल्फ, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम उसको बोलते हैं. तो वो भी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, की न्यूरॉन में कंडक्शन, न्यूरॉन में सिग्नल, दैट इज सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल. थैंक यू.